لاہور میں آوارہ اسٹریٹ ڈاگ کے مسئلے پر جماعت اسلامی اور این جی اوز کی مشترکہ کانفرنس پبلک ایڈ کمیٹی نے آوارہ کتوں کے حل کے لیے 8 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ این جی اوز نے جماعت اسلامی کے موقف پر مکمل اتفاق کیا اور انہیں اپنے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی۔ جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے کانفرنس کی صدارت کی۔ صدر پبلک ایڈ کمیٹی کیسر شریف اور سیکرٹری پبلک ایڈ کمیٹی شاہد نوید ملک، ایڈوکیٹ التمش سعید اور ایڈوکیٹ میاں احمد فاروق، انوائرمنٹل اینڈ اینیمل رائٹ کنسلٹنٹ پاکستان ڈاکٹر آمنہ عبید، خواجہ LCWU اینیمل ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن سوسائٹی ڈاکٹر بلال، پنجاب پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر فریحہ اسٹورمز ہارٹ ریسکیو، صدر ریفیلز اینیمل ویلفیئر رجسٹری بشمول 2 رکنی وفد بیرسٹر معصومہ بخاری فرخندہ اینڈ شہرت بخاری فاؤنڈیشن عافیہ خان گیو، اس لائف اینیمل ویلفیئر موسیٰ شعیب، ٹوٹس ویلفیئر سوسائٹی سید محسن، کمپریہنسیو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز ویلفیئر بینجی پروجیکٹ، ماہرین اور اینیمل رائٹس تنظیموں نے کانفرنس میں بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ ڈاگ کو مارنا مسئلے کا حل نہیں، سائنسی طریقہ کار اپنایا جائے۔ شرکاء نے اسٹریٹ ڈاگ کی آبادی کنٹرول کے لیے ویکسینیشن اور نیوٹرنگ پر زور دیا۔ کانفرنس میں شہریوں کے تحفظ اور جانوروں کے حقوق میں توازن ضروری قرار دیا گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ سے روایتی طریقے ترک کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ پبلک ایڈ کمیٹی کی تجاویز پر فوری عمل درآمد کی اپیل۔ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ ڈاگ سے متعلق مہم جاری رکھنے کا اعلان۔ ماہرین نے فیلڈ ورک اور تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ پاور سیکٹر ملازمین کے فری یونٹ کی سہولت کو ختم کر دیا۔ عوام کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل پر وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پہلی بار اس اہم اقدام کو عملی جامہ پہنایا گیا اور انصاف کی جانب ایک بڑا قدم ہے، بلکہ قومی وسائل کے بہترین استعمال کی ضمانت ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف علی رضوان سے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کو یونٹس کے متعلق بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے اور حکومتی پالیسیز کو برقرار رکھتے ہوئے بنیادی طور پر وفاقی حکومت نے دسمبر 2023 میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے تحت گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے افسران کے یونٹس کو مونیٹائز رقم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے۔ وفاقی وزیر بجلی اویس لغاری کی جانب سے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاور سیکٹر میں اہلکاروں کے یونٹس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی عوام کا بڑا مطالبہ تھا کہ ان یونٹس کو ختم کیا جائے، جس سے حکومت کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں منجن آباد سے ہمارے بیورو چیف بہاول نگر طاہر مشتاق خلسانہ کی رپورٹ کے مطابق سابق لیکچرار، پنجاب یونیورسٹی، مشہور بزنس مین، علاقے کی سیاسی سماجی شخصیت میاں فضل الرحمان خلسانہ ایڈوکیٹ نے رکنیت منجن آباد بار ایسوسی ایشن حاصل کرتے ہوئے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ ہر دل عزیز شخصیت میاں فضل الرحمان خلسانہ ایڈوکیٹ کو ممبر بار منتخب ہونے پر اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ممبرشپ کارڈ کی تقریب سینئر قانون دان سابق صدر بار سید اکرم شاہ ایڈوکیٹ کے چیمبر میں ہوئی، جس میں صدر بار ایسوسی ایشن منجن آباد میاں سعید احمد وٹو، سینئر قانون دان میاں خالد محمود شکوکا وٹو ایڈوکیٹ، میاں محمد یونس جویا ایڈوکیٹ، میاں محمد انور بھنڈارا ایڈوکیٹ، محمد شراز شیخ رحمان کلاوری ایڈوکیٹ سمیت معزز وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر میاں فضل الرحمان خلسانہ ایڈوکیٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بار ایسوسی ایشن کی رکنیت میرے لیے ایک اعزاز ہے جو میرے والدین، اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دوستوں کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، جس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ لاہور نے نشتر زون میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا آپریشن کیا۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے نشتر زون میں ٹارگیٹڈ انفورسمنٹ آپریشن مکمل کیا۔ آپریشن کا مقصد بلڈنگ کوڈز کی خلاف ورزیوں کا خاتمہ اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا تھا۔ غیر مجاز اسٹرکچرز کو ہٹایا گیا۔ مجموعی طور پر 9 پراپرٹیز کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں 5 عمارتیں مسمار اور 4 سیل کی گئی۔ یہ کارروائی اٹاری سروبا، آشیانہ روڈ، عطا بخش روڈ، کماہاں اور بہادر آباد میں کی گئی۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات جاری مہم کا حصہ ہیں تاکہ غیر قانونی اربن ڈیولپمنٹ کو روکا جا سکے اور منظور شدہ نقشوں کے مطابق تعمیرات کو فروغ دیا جا سکے۔ آپریشن کے نتیجے میں علاقے میں بلڈنگ بائی لاز کا نفاذ مضبوط ہوا ہے اور عوامی تحفظ کو بہتر بنایا گیا ہے۔ سید والا کے انواحی گاؤں مرید کے گندے پانی کا جوہر بن گیا، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سید والا سے ہمارے نمائندے بابو پاکستانی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ گاؤں مریدے کی تقریباً 1000 گھروں پر مشتمل آبادی ہے۔ اس کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ
घरों से नालियों के जरिए निकलने वाला पानी है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हर गांव में तालाब का मकसद गांव वालों और दूर दराज से आए मेहमानों को गलियों से गुजरने का आसान जरिया मुहैया करना है, जो कि इस गांव में ये सहूलत दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ऑन न्यूज से मैं हूं बाबू पाकिस्तानी। तो आए बाकी की तफसीली कहानी जानते हैं इस गांव वालों की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ गाँव ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ हुकूमत ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕरें। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਟਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हुकूमत पंजाब बादी मरियम नवाज ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਹੋਏ ਛਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਛੱਪੜ ਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਨਿਵਾਈ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਤਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੱਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਗਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਟਾਈ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਤੇ ਗਾਹ ਬੂਟ ਤੇ ਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ सिमावट जी इंदे च भी हो सकती है। इस गांव में अक्सरियत का कहना है कि हमारे घरों को इन नालियों के पानी से तो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यानी स्कूल भी इसी पानी में डूब रहा है। ऑन न्यूज से मैं हूं बाबू पाकिस्तानी। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहे हर वक्त हर जगह ऑन न्यूज। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सियाहत, सकाफत और आसार कदीमा पर अपनी महकमाना कमेटी के जरिए ऑडिटोरियम में इंतहाई बसीरत अंगेज सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी सदारत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद एहतशाम मजर गिलानी ने की, जबकि तकरीब के मेहमान सूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत और आसार कदीमा हुकूमत पंजाब राना आरिफ इकबाल खन्ना थे। मजीद तफसील जानते हैं हमारे जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। आज ही सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सियाहत, सकाफत और आसार कदीमा पर अपनी महकमा कमेटी के जरिए ऑडिटोरियम में एक इंतहाई बसीरत अंगेज सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें सियालकोट की पोशीदा खूबसूरती, सकाफती विरसा से सियाहत तक के मौजू के तहत मुनक्किद होने वाले सेमिनार ने शहर के भरपूर तारीखी, सकाफती और आसार कदीमा के विरसे पर तवज्जो मरकूज की, जबकि सियाहत की तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इसकी नाकाबिले इस्तेमाल सलाहियत को उजागर किया। इस सेशन ने पॉलिसी साजों, तारीखदानों, मीडिया के पेशेवर अफराद और सियालकोट को सियाहत के एक नुमाया मुकाम के तौर पर पोजीशन देने के लिए पुरअज़्म स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुकालमे के लिए एक बामानी प्लेटफार्म के तौर पर काम किया। सेमिनार की सदारत सैयद एहतशाम मजर गिलानी, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की, जिन्होंने शहर के विरसे के असासों को फरोग देने के लिए अदारा जाती ताउन की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी राना आरिफ इकबाल खन्ना, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत व आसार कदीमा हुकूमत पंजाब थे। मुकर्ररीन में डॉक्टर अब्दुल शकूर मिर्जा, राना मोहम्मद इकबाल खान, मंच डायरेक्टर आसार कदीमा पंजाब ने सियालकोट के आसार कदीमा की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली और मुनज़्ज़म सियाहत की तरक्की के इम्कानात का खाका पेश किया। पाकिस्तान के वाटर प्लानिंग कमीशन के साबिक चीफ और IUCN बोर्ड के मेंबर सैयद नसीर अहमद गिलानी ने सियाहत के फरोग के लिए दरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क और कौमी सतह पर ताउन के बारे में काबिल कदर बसीरत का इश्तराक किया। कर्नल रिटायर्ड मोहसिन आदिल ने सियालकोट के सकाफती इर्तका और इसकी फिक्र अंगेज तशरीह की जरूरत पर रोशनी डाली, जबकि उर्दू पॉइंट के सदर शाहिद नजीर चौधरी ने सियाहत के बयानिए की तश्कील और मरियत
को बढ़ाने में मीडिया के अहम किरदार पर जोर दिया। कलीदी खुतबा देते हुए डिस्कवर पाकिस्तान के सदर डॉक्टर जुल्फकार अली काज़मी सियालकोट को एक तस्लीमशुदा सियाहती मरकज में तब्दील करने के लिए कहानी सुनाने, ब्रांडिंग, डिजिटल आउटरीच की अहमियत पर जोर दिया। सेमिनार का इन्नेकाद SCCI कमेटी बराए सियाहत और सकाफत और आसार कदीमा के कन्वीनर खालिद लतीफ़ ने किया था, जिनकी काविशें मुकर्ररीन के मतनू और इल्मी पैनल को इकट्ठा करने में अहम तरीन थी। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां दाता गंज बख्श टाउन में खुलेआम गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का सिलसिला जारी है। आला हुकाम ने गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक दाता गंज बख्श टाउन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान ने करप्शन की तमाम हदें पार कर दी। करप्ट बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान ने करप्शन के लिए अपने कारे हास रखे हुए हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर के कारे हास नदीम लोधी और आकिल लोगों से लाखों रुपये रिश्वत लेकर दाता गंज बख्श टाउन में बिलालगंज, मोहनी रोड और क्रीम पार्क गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात और बेसमेंट की तामीर करवा रहे हैं। दाता गंज बख्श टाउन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर सलमान इसके कारे हास नदीम लोधी और आकिल लाखों रुपये वसूल करके रहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात करवा रहे हैं। दाता गंज बख्श टाउन से रहायशी इमारत का नक्शा पास करवा कर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात और बेसमेंट की तामीर करवाई जा रही है। ZOP की अशरबाज से नदीम लोधी और आकिल खुलेआम लोगों से रिश्वत वसूल कर रहे हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर दाता गंज बख्श टाउन सलमान इसके कारे हास नदीम लोधी और आकल महकमे को माहाना लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बिल्डिंग इंस्पेक्टर दाता गंज बख्श टाउन सलमान और इसके कारे हास नदीम लोधी और आकल की करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों ने महकमाना रेवेन्यू के आला अफसरान और डिप्टी CEO मोहम्मद जमील महकमे के करप्ट एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करवाया जाए। रायविंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड में अंजुमन ताजरान किराना एसोसिएशन के ज़रिए तमाम ताजर बरादरी के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम ताजर तंजीमों के रहनुमाओं और ताजरों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन अंजुमन ताजरान किराना एसोसिएशन शेख महमूद नारंग ने रायविंड में जारी तारीखी तरक्याती मनसूबों पर MNA का शुक्रिया अदा कर लिया। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर ने कहा है कि ताजर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और इनके मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायविंड की तरक्की के लिए जारी मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि अवाम और ताजरों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकें। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा बरियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, साजिद करीम समेत जिला के प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इंस्पेक्शन तेज करने की हिदायत, जिला में अशिया खुर्दनोश के तलबरस्त और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में हुकूमतों में एतदाल रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के इंस्पेक्शन करें। नोटिफाइड कीमतों पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त होनी चाहिए। आवाम को अशिया की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कानून शिकन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और इनकी दुकानें सील की जाए। मजिस्ट्रेट्स फील्ड में निकले, जुर्माने खजाने में जमा करवाए जाएँ। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया का बेनिशियल गंदम खरीदारी मरकज़ का दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा, असिस्टेंट कमिश्नर सदर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर भी हमरा मौजूद। कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मरकज़ पर काश्तकारों की सहूलत के लिए कायम किए गए बैंक काउंटर्स और बारदाना स्टॉक का मुआयना किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने गंदम खरीदारी मरकज़ पर आए काश्तकारों से बराह रास्त बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक 3500 रुपये फी मन गंदम खरीदारी को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक काश्तकारों को मुफ्त बारदाना फराहम किया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदारी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं खान मेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक अतर सलीम मार्केटिंग मैनेजर ISH पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ खान मेला में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि 2009 से शुरू होने वाली ISH कंपनी स्पेयर पार्ट्स की दुनिया में एक ब्रांड का दर्जा हासिल कर चुकी है, जिसका सहरा हमारी कंपनी के सुपर डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार हजरात को जाता है, जो हमारे कीमती असासा हैं। स्पेयर पार्ट्स की मार्केट में मुनासिब कीमत, आला क्वालिटी हमारी पहचान है। आज ISH SAF में कदम रख चुकी है। हमारी कंपनी के साख्ता बेरिंग, पिस्टन, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, प्योर कॉपर की मैग्नेट कोयल,
जंप प्लॉट्स, हेड गैस किट समेत तमाम पार्ट्स सही टू B2 और रिपीट तमाम पार्ट C2 B2 क्वालिटी के होते हैं। आज हमारी कंपनी 586 आइटम मार्केट में फ्राहम कर रही है। हर दुकान पर सामान की दस्तयाबी अवलीन तरजीह है। जनूबी पंजाब के मेहनती और प्यार करने वाले सराइकियों को ISH की जानिब से सलाम। आप टैलेंटेड लोग हैं, धूप में काम करते हैं। से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया ने बेनिचल गंदुम खरीदारी मरकज़ का दौरा किया और वहां जारी गंदुम खरीदारी मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा, असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमजा एहतशाम, SDO पेरा सदर साइमा यकूब और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज सप्रा भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने गंदुम खरीदारी मरकज़ पर काश्तकारों की सहूलत के लिए कायम किए गए बैंक काउंटर्स, बारदाना के दस्तियाब स्टॉक और दीगर इंतजामी अमूर का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि किसानों को गंदम की फरोख्त के अमल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो और तमाम मराहिल शफाफ, मुनज़्ज़म और बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। दौरे के दौरान कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया ने मरकज़ पर मौजूद काश्तकारों से बराह रास्त बातचीत की, इनके मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फौरी हल के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक सूबा भर में गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फी मन के हिसाब से यकीनी बनाई जाएगी ताकि काश्तकारों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत काश्तकारों को मुफ्त बारदाना फराहम किया जा रहा है और किसान कार्ड होल्डर से तरजीह बुनियादों पर गंदम खरीद की जाएगी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब ने थाना बगदाद अल जदीद और थाना अब्बास नगर में कुली कचहरियों का इनेकाद किया। इन कुली कचहरियों में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO राना अब्दुल वहाब ने मौके पर मौजूद मुतल्लिका अफसरान को शहरियों की शिकायत के फौरी इजाला के अहकाम जारी किए और मुतअद्दिद मसाइल पर मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों के मसाइल को मेरिट पर बर वक्त हल करना और अवाम और पुलिस के दरमियान इत्तेमाद को फ़रोग़ देना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है और शहरियों को दरपेश मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाका मकीनों ने DPO के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि कुली कचहरी अवाम और पुलिस के दरमियान फासला कम करने में अहम किरदार अदा कर रही है और इससे मसाइल के हल में वाज़िया बेहतरी आई है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात भावलपुर के राना मोहम्मद इशफाक 35 साल बाद 15 अप्रैल 2026 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। इस मौके पर एक पुरतकल्लुफ़ खाने का अहतमाम किया गया जिसमें ऑफिसर इंचार्ज मीट ऑफिस भावलपुर के अलावा महकमा मौसमियात के अमले के साथ शाहजेब खानजादा, मोहम्मद अशरफ, विंस, दीवान इमरान बुखारी और शहर के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और राना मोहम्मद इशफाक की 35 साला खिदमात को सराहा गया और स्टाफ की तरफ से राना मोहम्मद इशफाक को तोहफ़े भी पेश किए। शेरगढ़ मलिक यासीन जज की रिहाई हक सच की फतह है। मेहर अदनान अशरफ का बयान। शेरगढ़ जावेद नगर से मलिक राजा सामल की रिपोर्ट के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मेहर अदनान अशरफ, सरदार आमिर खान जिंदरान, एडवोकेट मलिक इमरान जज, तर्जुमान शहादत भट्टी, सजाद हैदर, दुल एडवोकेट, ताहिर जावेद कंबो, असद रजा, नासिर चौहान एडवोकेट, मुश्ताक ढक्कू, हाजी जमान खान, अली सजाद गोगा, गुलाम रसूल डोगर, मियाँ अल्लाह नवाज बट्टू, मेहर जहांगीर फैज, मियाँ कामरान नवाज जोया ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब मलिक मोहम्मद यासीन जज, इनके साथियों को फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने मनगढ़ंत मुकदमा बनाकर गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया पर इस बाबत खबर नशर होने पर डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA ने नोटिस लिया और आला सतह इंक्वायरी लगा दी। मोअज़्ज़ज़ मजाज अदालत ने मलिक मोहम्मद यासीन जज और इनके साथियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहा होने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सैकड़ों वर्कर साथियों ने रिहाई मनो फूलों की पत्तियां निछावर की और फिकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। मलिक मोहम्मद यासीन जज ने कहा है कि रिहाई हक सच की फतह है। इन ओछे हथकंडों से हमारा ईमान मुतज़लज़ल नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह किसानों के हकूक का दिफा आइंदा भी करते रहेंगे। साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने अपने दफ्तर में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेख इशफाक अहमद के साथ इजलास की सदारत करते हुए शहर में जारी तरक्याती और शहरी सहूलियात से मुतल्लिक अमूर का तफसीली जायजा लिया। इजलास के दौरान कमिश्नर ने ज़ेर तामीर स्लाटर हाउस पर काम की रफ्तार तेज़ करने, मेयार को यकीनी बनाने और मुकर्रर मुद्दत में तकमील की हिदायत की। उन्होंने शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की फाली और यकीनी बनाने, खराब लाइट्स की फौरी मरम्मत और अंधेरे इलाकों में नई लाइट्स की तनसीब पर जोर दिया है। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने सड़कों के पेशवर्क को भी तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरियों को आमदरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी हुकूमत की अवली तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चीफ ऑफिसर को हिदायत की है कि तमाम तरक्याती कामों की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए और मेयार पर कोई समझौता ना किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके।
नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक फलाही तंजीम अंजुमन शहरियान थाना नारंग का महाना इजलास हाफिज राना ओन अलबारी की सदारत और मसीही कम्युनिटी के मेज़बानी में वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च में मुनक्किद हुआ। ईरान अमेरिका वार में ईरान की मुकम्मल हमायत। परवेज़ दीवान की शमूलियत। सरदार शिफा अली की अचानक वफात पर दुआए मग़फ़िरत की गई। अंजुमन शहरियान थाना नारंग का महाना इजलास सदर हाफिज राना ओन अलबारी की ज़ेर सदारत और सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी की ज़ेर निगरानी वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च FJ कॉलोनी नारंग में मुनक्किद हुआ, जिसकी मेज़बानी मसीही कम्युनिटी के आमिर सदीक, असलम मसीह खोखर, परवेज़ उज़ैर बरादरान ने की। महाना इजलास में सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल सरदार नईम रज़ामान, चीफ ऑर्गेनाइजर सदर हाफिज राना ओन अलबारी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद जैद, डिप्टी सेक्रेटरी ज़हीर अरशद मुगल समेत सैयद कासिम अली शाह, मियां अमजद अली, मलिक जुल्फ़कार अली, फजल अब्बास हैदरी, कारी शुएब शफीक, ज़ैनुल आबिदीन, कारी कासिम शाकिर, तलहा ताहिर, कासमी मोहम्मद सफियान, सलीम फारूकी, तनवीर अहमद मुगल, नसीर अहमद MPA, हाजी फ़ियाज़ शौकत, हाजी अब्दुल रज़ाक, शहरोज़ अमजद, कमर इकबाल गुलाटी, रहमान गुलाटी, उस्मान मनिक खोखर और इमरान अफजल दुगल भी हमरा थे। खबर शामिल कहते हैं फिरोज़ा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक फिरोज़ा मिनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन का मरीम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर चक नंबर 317 7R तहसील लियाकतपुर में मिनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन के ज़रिए तमाम एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लीती बरादरी के हकूक़ और मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से इक़दाम को सराहा गया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया है कि उन्होंने अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह बहबूद के लिए नुमाया इक़दाम किए हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जिनकी क़यादत में मुल्क में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिला। मिनॉरिटी कवरेज फाउंडेशन के बानी सदर अमानुएल गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम मरीम नवाज शरीफ के विज़न को सराहते हैं और इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हम तमाम मिनॉरिटीज़ मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं और मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करते हैं। तकरीब के दौरान फाउंडेशन की जानिब से फलाही सरगर्मियों के तसलसल का आज़म दोहराया गया, जबकि मुकामी नुमाइंदगान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।